So students, let's started our chapter 4 whose name is multiplication and division of algebraic expression. This class is for class 8. Multiplication and division of algebraic expression. You are already acquainted with addition and subtraction of algebraic expression. In the process of addition and subtraction, integer numbers are added and subtracted respectively, and the algebraic remains the same. Similarly, in class 7, you have studied on the multiplication or multiplying any two algebraic expression. Their constant are multiplied with the constant and the variables are multiplied with the variables. Okay, so here it is written that in this lesson we have to add, subtract, multiply and division of the algebraic expression. Okay, this chapter is for multiplication and division. In class 7th you have studied about how to do a subtraction and addition of algebraic expression. What is the meaning of algebraic expression? The expression which contains some variables and some constant. What do you mean by variable and constant? Let's just discuss about what do you mean by variables and constant. Okay, so variables are all alphabets which are used in English language. For example, a is a variable, b is a variable, e is a variable. Okay, so there are many variables as 26 letters are present in alphabets. You take any of the variables in the algebraic expression. Okay, so we take variables because we didn't know the exact value of that number or that variable. Okay, for example, let's just take an example. For example, Meena is a student and she goes to market and takes 7 chocolates for some rupees, and we didn't, in this case we didn't know what is the amount of 7 chocolates. So often we take the amount as x or as a or as b. Okay, this is depend upon you what you want to take as a variable. Okay, so in this case we didn't know what is the amount of 7 chocolates. That's why we take x as the amount of chocolates, or we take a, b, c, etc. as a variable. So I think now you understand what is the meaning of variable. Let's talk about constant. What is a constant? If I write a equation, this is my equation. What is the meaning of equation? When we equalize anything with 0, this is called equation. Okay, so here we have our variable as x and we have some numbers. Okay, so here the algebraic expression, this is algebraic expression. Why we called this as a algebraic expression? Because it also contain variables and also constant. So here the variable is x, and with variable there is a constant term. Okay, there is a constant term which is 2. What is the meaning of constant? Constant, it is a definite number. Okay, what is the meaning of constant? The definite number or a definite term that we know. For example, here what is a constant? 2. So here the constant never change. What is the meaning? See, here the value of variable may be changed. But the value of 2 never change. I want to say, देखो जैसे 2 है, 2 कोई भी नंबर है, ठीक है, तो 2 की वैल्यू 2 ही होगी ना. 2 की वैल्यू 4 तो नहीं हो सकती, 7 तो नहीं हो सकती. बट इन द केस ऑफ वेरिएबल, सो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अगर तुम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चेंज कर दो तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. लेकिन अगर तुम कोई भी नंबर को, इफ़ यू टेक एनी ऑफ द नंबर इन एनी ऑफ द इक्वेशन, देन दे वॉन्ट चेंज देयर वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल 2, अगर 2 हम इस इक्वेशन में लिए हैं, मीनिंग 2x + 4, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 ही रहने वाली है. एंड इफ़ वी टेक 2 इन अवर अदर इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल 2x² + 7, देखो जैसे अगर हम 2 को दूसरे इक्वेशन में भी लेंगे
तो 2 की वैल्यू 2 ही रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि 2 की वैल्यू 7 हो जाए. That's why we called a number as a constant. Mean they won't change their value. It is a definite number. Okay, it is a definite number. So in equation, the constant is simply a number which does not contain any variable. Okay. So here 2x including 2. Okay, it is a what? It is a constant and it is a variable. And here it is a constant. Okay. In of 10 we called 4 as a constant and not 2. देखो 2 को हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे. 2x, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, पर यहाँ पे 4 क्या है कांस्टेंट. समझ आ रहा है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Here it is the activity given. In the table given below algebraic expression as the two variable and their products are shown. Some blank space are given in the table. Fill the blank with correct value. So here you have to complete this table. Series number 1, first expression -3, second expression a, first expression multi 2 expression -3 dot a, and second expression multi first expression a multi -3 and product. So here there is some values which is given and you have to simply find their product of first number to second and then second to first, and you have to write the answer. So in second case it is given, in third case it is also given, in fourth case, see, in fourth case it is not given, we have to find. Okay, so here the first expression, okay, here's the first expression is 7x, second expression is -4y. We have to find the product of first and second term. Okay, so first and second term, let me find 7x multi -4y. So in what way did we find the product of any what expression, any expression? What is the meaning of expression? Which contain a constant and variable, or we called constant as expression and variable as expression. Okay, so you have to first multiply the constant, meaning the numbers of each expression. Okay, firstly multiply the number of each expression. 7 4s are 28. Okay, 7 4s are 28. 7 multi -4. See here 7 multi -4, that's why we write -28. I think you all know plus minus is always equals to minus. Okay, minus is plus and minus plus is minus. So here 7 contain plus and 4 contain minus, so plus minus minus. Okay, then you have to multiply the variables of each expression. X multi y is simply equal to xy. Okay, so here -28xy is the answer. So यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, you have to write -28xy. ठीक है. सेकेंड एक्सप्रेशन मल्टी फर्स्ट एक्सप्रेशन, मीनिंग अगर आप -4y मल्टी 7x करते हैं तो आपका -28xy ही आने वाला है. तो यहाँ पे सेम आंसर होगा. प्रोडक्ट लिख देना, आंसर लिख देना. ठीक है. सो इन द सेम वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल द टेबल्स, ऑल द क्वेश्चंस. लेट्स सी द 6th क्वेश्चन. ठीक है, 6th क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपका. फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 4a². ओके, 4a². सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो हमें फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द सेकेंड एक्सप्रेशन. एंड हियर वन मोर थिंग इज गिवन विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट और फर्स्ट और सेकेंड. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड. प्रोडक्ट कितना दिया गया है, -12a²b. ठीक है. सो हियर वी हैव टू फाइंड द सेकेंड एक्सप्रेशन. लेट्स टेक सेकेंड एक्सप्रेशन एज t. ओके, t आप ले सकते हैं, t ले सकते हो, इसकी जगह x ले सकते हो. आई थिंक वी हैव टू टेक x एज अ सेकेंड इक्वेशन या एक्सप्रेशन. तो x हमने ले लिया सेकेंड एक्सप्रेशन बिकॉज हमें नहीं पता कि सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट. सो प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन है. तो लेट्स सी प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट हियर,
it is a multiply. Okay, it is a multiply. So product of first and second और second of first आपका दिया है -12a²b. Okay, so यहाँ पे आपने लिखा you have to write the product of first and second. Sorry, it is a x -12a²b. ठीक है. So you have to find the value of x. That's why transfer this 4a² to this side, -12a²b by 4a². Then write this in a simple format by which you are able to calculate it very simply. Okay, so a cancel, a cancel, 4 1s are 4, 3s are 12, and because here minus sign is here, that's why we also follow the sign. Okay, so the x is equals to -3b. X is equals to -3b. In this way our second expression is what? Second expression is -3b. ठीक है, -3b. I think you all are understand what I am trying to saying or teaching. So ये पूरा आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, ये पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. Here we can see in table the product value remain the same if the place of the expression are changed. From this, which rule about multiplication does this observation satisfy? ठीक है, let us look at few more example. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमने पूरा ये टेबल जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो यहाँ पे आपका एक कंक्लूजन निकलेगा. कैसा कंक्लूजन निकलेगा? कुछ इस टाइप का कंक्लूजन निकलेगा. व्हेन यू मल्टीप्लाई, okay, when you multiply any two expression, so if you change the places of those two expression, then your answer won't be change. ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि आपने अगर कोई भी एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया था 4a² और हमारा सेकंड आया था -3b. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर -12a²b ही रहने वाला है. ठीक है, अगर आप इनकी प्लेसेस चेंज कर देते हो तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा. अंडरस्टैंड? ठीक, आगे चलते हैं. Thus we can see that when the base is the same, the exponent get added according to the rule of exponential numbers. ठीक है, तो in previous chapter we had learned about the law of exponents. ठीक है, आपको याद होगा what is the law of exponent. अगर बेस सेम होता है, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन का बेस सेम होता है तो उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. ओके, while adding an algebraic expression you have seen that the factor get added to each other. For example, x plus x, 1 plus 1 x, 2x. Here is a multiple factor of x. So यहाँ पे ये लिखा है while adding an algebraic expression you have seen that the factor get added to each other. जब हम कोई algebraic expression for example हमने लिया x प्लस x. ठीक है, तो x प्लस x कैसे लिखा हुआ है? यहाँ पे 1 मल्टी x और 1 मल्टी x के फॉर्मेट में लिखा हुआ है. कैसे? देखो, x के सामने में कुछ नहीं है, मीनिंग क्या है? 1 है. ओके, एंड यहाँ पे भी x के सामने कुछ नहीं है, मीनिंग 1 है. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका x के फैक्टर फर्स्टली ऐड हो जाएंगे एंड देन कॉमन निकल जाएगा और आप सिंपली 2x लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना ये चाह रही हूँ. फॉर एग्जांपल हम सेकंड लेते हैं कोई क्वेश्चन, ये तो आप इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि 2 मल्टी x है एंड देन 3 मल्टी x है. ओके, ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, लिख सकते हैं ना. तो यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए तो 2 + 3 हो गया और आपका आंसर निकल गया 5x. तो इन दिस वे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, similarly 2x is obtained by adding x to himself twice. Thus x plus x is equals to 3x and x plus x plus x plus x is equals to 4x.
सो यहाँ पे ये कैसे हुआ, देखो इनके सामने में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 है, तो उसको आप ऐड कर दो, आपका 4 आ जाएगा। एंड देन कॉमन हमारे पूरे x है, दैट्स वाई वी राइट x इन ओनली व्हाट, वी राइट ओनली 1x, ठीक है। So the multiple factor of x become the number that is the number of times it is added and hence in 2x. 2 is the product factor and x is the variable. So अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2x को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट फैक्टर बोलेंगे और x को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर, बिकॉज ये मल्टीपल के फॉर्म में लिखे हैं, दैट्स व्हाई वी सेड 2 एज द प्रोडक्ट एंड यहाँ पे फैक्टर है 2 एंड x का फैक्टर 2 क्या है, 2 एंड x प्रोडक्ट फैक्टर के फॉर्मेट में लिखे गए हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल 2 एज द प्रोडक्ट फैक्टर। और हम जानते हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स को हम एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स बोलते हैं, गॉट इट। देयरफॉर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x द वैल्यू ऑफ 2x विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आप x की कोई भी, अगर आप x की वैल्यू को चेंज करते जाओगे तो 2x की वैल्यू भी चेंज होगी। अब यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या है, अगर x की वैल्यू 3 हो गई तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। कैसे, 2 × 3 = 6, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 हो गई तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 4 = 8। और अगर x की वैल्यू 5 हो गई सो क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू 2 × 5 = 10, ठीक है, गॉट इट। सो अगर इफ़ यू चेंज द वैल्यू ऑफ x देन द वैल्यू ऑफ 2x इज ऑल्सो बी चेंज, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल बिलो, सो यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक। क्या है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 1 है तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ईजी है, ठीक है। अगर x की वैल्यू क्या है, 3 है, सो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, आपको खुद करना है। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2x की वैल्यू यू हैव टू से, अगर x की वैल्यू 8 है सो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 2 और 7 वाला आप खुद से करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वन डे द टीचर आस्क्ड नीरज इन द क्लास, टीचर व्हाट इज योर एज? Neeraj said, I am 13 year old. Teacher, what will be your age after 2 years? So देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर ने पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है, तो नीरज ने क्या बताया कि मेरी एज कितनी है, 13 है, ओके। फिर टीचर ने पूछा 2 साल बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी, सो नीरज ने आंसर दिया कि मेरी एज 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स हो जाएगी। टीचर, हाउ ओल्ड आर यू जितेंद्र? अब दूसरे स्टूडेंट से टीचर ने पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है, ओके। सो दूसरे स्टूडेंट ने आंसर दिया, आई एम नियरली 12 ईयर ओल्ड, ठीक है, मैं 12 साल का हूँ, ऐसा उसने कहा। व्हाट विल बी योर एज आफ्टर 2 ईयर? सो सेम क्वेश्चन। फिर अदर स्टूडेंट ने बोला कि मेरी एज 2 साल बाद 14 ईयर ओल्ड हो जाएगी। देन टीचर ने कहा, इफ अ पर्सन, 1 मिनट, if a person is x year old then after 2 year old how old would he be? so यहाँ पे एक्चुअली में ये कहा जा रहा है, सबसे पहले एक फर्स्ट स्टूडेंट से टीचर ने कहा कि तुम्हारी एज कितनी है, सो उसने आंसर दिया कि मेरी एज कितनी है, 13 ईयर्स, ठीक है। तो फिर टीचर ने पूछा कि 2 ईयर्स बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी, तो नीरज ने क्या किया, सिंपली 13 + 2 कर दिया एंड 15 ईयर्स बता दिया, ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट ने क्या किया, टीचर ने सेम क्वेश्चन पूछा, तो सेकेंड स्टूडेंट ने बताया कि मेरी 12 ईयर एज अभी है, सो 2 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर्स कितनी हो जाएगी, 12 + 2 सिंपल 14 हो जाएगी, ठीक है, 14 ईयर्स हो जाएगी। अब टीचर ने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई पर्सन है जिसकी एज क्या है, थर्ड स्टूडेंट मान लो, थर्ड स्टूडेंट की एज कितनी है, x ईयर है, ठीक है, x ईयर है। किसी की एज x तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें पता नहीं है ना उसकी एज कितनी है, दैट्स व्हाई वी टेक हर और हीज एज एज अ x। तो फिर टीचर ने कहा कि अगर किसी या थर्ड स्टूडेंट की एज है तुम्हारी x ईयर, तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, नीरज के केस में 13 थी, 13 + 2 हो गई। सेकेंड अपना जितेंद्र था, 12 + 2 हो गई। थर्ड कौन सा है, x है, x एज है उसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2 ईयर्स। समझ आया, इजी है ये बहुत, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं।
So if we keep the value of x different, then the value of x plus 2 will also be different. तो सेम यही है, ठीक है. अगर तुम x की वैल्यू को चेंज करते रहोगे, इफ़ यू चेंज द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 2 इज ऑल्सो डिफर. फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर आपको 1 गिवन है, सो x की वैल्यू पुट करिए x प्लस 2 में, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3. ठीक है. इफ द वैल्यू ऑफ x इज 2, then put the value of x in x plus 2, so 2 plus 2 is 4. Got it? तो जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे ही x plus 2 की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी. Thus we can see the 2x. ओके, ये सेम है पूरा, ठीक है. यहाँ पे देखते हैं. Multiplying monomial expression with polynomial expression. अब what is the meaning of monomial expression and what is a polynomial expression? वो हम धीरे धीरे करके समझेंगे. ओके. In class 7, we have learned how to multiply any monomial algebraic expression to binomial algebraic expression. Let us revise the multiplication of monomial expression with binomial expression once again by activity. So firstly, let me explain what is the meaning of monomial and binomial. So monomial expression, okay, monomial expression. मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल मोनोमियल ये होते हैं जिसमें जैसे 4x² माइनस 7x² जिसमें वन टर्म होती है. ओके. मोनोमियल एक्सप्रेशन आर दोस एक्सप्रेशन विच ओनली कंटेन वन टर्म. ओके. वन टर्म ओनली होती है इसमें, वन टर्म. अब हम टर्म किसे बोलते हैं? फॉर एग्जांपल आपका एक एक्सप्रेशन दिया गया है 4x² प्लस 7x प्लस 3, तो इसमें 4x² एक टर्म हो गई, 7x एक टर्म हो गई, 3 एक ऐसी टर्म हो गई. तो ये आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर आप समझ लो इसे टर्म किसे बोलते हैं. हियर 4x² इज अवर फर्स्ट टर्म एंड 7x इज अवर सेकेंड टर्म एंड 3 इज अवर थर्ड टर्म. सो इन दिस वे दिस इज कॉल्ड अ टर्म. So the expression which contain only one term is called a monomial. Let's discuss about binomial. What is the meaning of binomial? ठीक है. So यहाँ क्लियर हो गया होगा, बाय मतलब 2 होता है. So it's mean that कोई भी algebraic expression जिसमें 2 टर्म हो, ठीक है, 2 टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल. सो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 3x³ प्लस 2, ये आपका एग्जाम्पल हो गया. देन 4x² प्लस 7, ठीक है, ये आपका हो गया. एंड देन 9x² प्लस 7. तो ऐसे करके ये एग्जाम्पल हो गए. बाइनोमियल क्या है? जिसमें 2 टर्म्स होती है. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि हम कैसे बाइनोमियल और मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, बाइनोमियल और मोनोमियल एक्सप्रेशन को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो इसका मीनिंग यही है, जैसे हमने एक मोनोमियल लिया 3x² और एक बाइनोमियल लिया 7x² प्लस 7. तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ही ईजी है. ठीक है, कैसे ईजी है? देखो, सबसे पहले आप 3x² को 7x² से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 3x² को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो अगर 3x² मल्टी 7x² होगा तो हम करके देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 जा 21 एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स. सो x² मल्टी x². अब 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, x² मल्टी x², यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल लगेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ एक्सप्रेशन? देखो, यहाँ पे बेस क्या है? सेम है, बेस सेम है. एंड देन पावर, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. तो पावर को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा x टू द पावर 4. तो यहाँ पे आपका आ गया सिंपली 21x टू द पावर 4. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 21x टू द पावर 4. ठीक है, फिर साइन वही रहेगा एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 3x² टू 7. ठीक है, 7 3 जा 21x². देन फर्दर कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे भी 21 है एंड देन x² यहाँ पे है और यहाँ पे भी x² है. तो 21x² आपने क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया और आपका आंसर क्या आ गया? 21x² ब्रैकेट में x² प्लस 1. ठीक है, ऐसे करके हम कोई भी बाइनोमियल और मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं एंड सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मोनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है x, बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है a प्लस b. अब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद प्रोडक्ट लिखना है. मल्टीप्लाई मतलब फॉर्मेट में लिखना है, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, एंड देन यू हैव टू
राइट द आंसर ऑफ इट। ठीक है, तो हम फोर्थ आपको बता देती हूँ फोर्थ कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे मोनोमियल आपका गिवन है 2t², ठीक है, 2t²। एंड बाइनोमियल क्या गिवन है, बाइनोमियल गिवन है 3r² - 55। So firstly you have to multiply monomial to binomial, 2t² ब्रैकेट में 3r² - 55। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा, यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ साइड में। सबसे पहले हमें 2t² मल्टी 3r² करना है, तो 2t² मल्टी 3r² करना है। तो फर्स्टली यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स, 3 2 जा 6 एंड देन वेरिएबल्स t² r², सो t² r²। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 6t² r² एंड देन 2t² मल्टी -55। ठीक है, 55 2 जा 110, आई एम राइट, यस, एंड देन t², और बिकॉज हियर 2t² कंटेन प्लस साइन and 55 contain minus sign, so plus minus minus, okay, so the answer is -110t²। ठीक है, एंड देन कॉमन निकाल लीजिए, इसके पास भी t² है, इसके पास भी t² है, एंड ऑल्सो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 2 एंड 110 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, तो आप 2t² कॉमन निकाल सकते हैं, 3r² माइनस 5t²। ठीक है, ये सेम हो गया, आप इसे आंसर लिख सकते हो, ये आंसर भी लिख सकते हो, ये आंसर भी लिख सकते हो, पर हमें बिकॉज हमें फैक्टर मतलब प्रोडक्ट निकालना है, तो ये आंसर ज़्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया था हमारे, है ना। सो यहाँ पे आंसर हमारा निकल गया है, कितना निकला है हमारा आंसर, 6t² r² - 110t²। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। Let's move forward. Similarly, we can multiply any monomial expression by polynomial expression. Now, what is the meaning of polynomial expression? Polynomial expression are those expression which contain what? Many terms. Polynomial मतलब बहुत सारी टर्म्स अगर कंटेन कर रहा है कोई भी एक्सप्रेशन, तो हम उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर एक टर्म किया तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म किया तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म किया तो ट्राइनोमियल, एंड देन अगर 3 से ज़्यादा मोर देन 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6, तो हम उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 1, 2a ब्रैकेट में a + 2b + 5c, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ मोनोमियल, दिस इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। तो इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं। फर्स्टली आई हैव टू राइट द क्वेश्चन, और यू ऑल्सो हैव टू राइट द क्वेश्चन 5c। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, 2a² किया प्लस, देखो मैं यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ओके, 2a² मल्टी a, मतलब सॉरी 2a मल्टी a करेंगे, तो यहाँ पे 2a है, 2a प्रेजेंट है, तो 2a को दिखाने के लिए हम स्क्वायर लगाते हैं। समझ आ रहा है ना कैसे किया। ठीक है, अब 2a मल्टी 2b करना है, सो कितना हो जाएगा आपका 2a मल्टी 2b। सो फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड देन वेरिएबल्स। सो नंबर्स मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, एंड देन वेरिएबल्स मल्टीप्लाई किया तो a b आया। सो इन थर्ड केस you also have to multiply the number first, 5 2s are 10 and then variables ac। ठीक है, got it, this is our answer। ठीक है, so let's move forward। Here you have to done a same thing, then multiplication of two binomial expression। So in what way did we multiply two binomial expression, let me explain to you। Firstly, I am taking a binomial as first 5x + 3y, and then 4x + 5y। So we have to multiply both binomial. Okay, meaning we have to multiply 5x + 3y to 4x + 5y. Okay, so you have to done this multiplication in same format as previous। देखो 5x + 3y मल्टीप्लाइड बाय 4x + 5y। अब हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है, ये हम देखते हैं। लेट मी राइट इन बिग लेटर्स बाय विच यू आर एबल टू सी इट क्लियरली। ओके, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो
Firstly, you have to multiply 5x to 4x and then you have to multiply 5x to 5y. ठीक है, इतना पहले आपको करना है. सो करते हैं. 5x मल्टी 4x कितना हो जाएगा? फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स, मीनिंग 5 मल्टी 4 इट इज 20 एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई x टू x. वेरिएबल्स करने हैं ना, x टू x, तो x मल्टी x कितना होता है? x स्क्वायर होता है. ठीक है, अब सेकेंड हमें क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई 5x to 5y. So 5 multiply 25 and then x multiply xy. ठीक है, इतना हो गया. इतना होने के बाद आपको 3y को 4x से मल्टीप्लाई करना है एंड देन 3y को 5y से मल्टीप्लाई करना है. प्लस साइन लगेगा, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, 4 3 ज़ा 12 xy प्लस 5 3 ज़ा 15y स्क्वायर. ओके, कोशिश करो करने की, हो जाएगा. देन सॉल्व करिए. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसका वेरिएबल एक्स वाई है एंड दिस टर्म कंटेन एक्स वाई एज वेरिएबल एंड देन दिस टर्म कंटेन वाई स्क्वायर एज अ वेरिएबल. तो एक्स वाई वेरिएबल्स, जो टर्म्स एक्स वाई एंड एक्स वाई वेरिएबल्स कंटेन कर रही है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं साथ में. यस, हम इसे ऐड कर सकते हैं. 20x² प्लस 25 मल्टी 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 37xy प्लस 15y स्क्वायर. सो इन दिस वे हमारा आंसर क्या आ गया? 20x² प्लस 37xy प्लस 15y स्क्वायर. इट इज़ अ आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, आई थिंक यू ऑल गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच. ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 से जो मैंने लिया है. Then here example number 5 is given, example number 6 वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? देखो, वेरिफिकेशन करने के लिए आपको वेरिफिकेशन करने के लिए आप x या y की कोई भी वैल्यू ले लो, जो वैल्यू आपको चाहिए वो ले लो और उसको LHS और RHS में पुट करके देखिए, आपका आंसर सेम आएगा. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -2. ठीक है, ये वेरिफिकेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना. और कैसे हम वेरिफिकेशन का मीनिंग यही होता है, जब एक बार आंसर सॉल्व हो गया उसके बाद चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं. ठीक है, इसे पढ़ना. ठीक है, पेज नंबर कौन सा है? 47. फिर है हमारा प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये आपको आता है, कैसे हम करते हैं मैंने आपको बताया ना. सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता रही हूँ. जैसे 4x² प्लस 2 है, ठीक है, और 7x² प्लस 2 है. तो सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले 4x² को 7x² से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन 4x² को 2 से मल्टीप्लाई करोगे. फिर जब यहाँ पे लिख दिया प्लस यहाँ पे लिख दिया, सो ये वाला साइन फॉलो करना है. ठीक है, ये वाला साइन फॉलो करने के बाद 2 को 7x² से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ये वाला साइन फॉलो करेंगे. ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये माइनस नहीं है, मैं आपको बस हाईलाइट करने के लिए बता रही हूँ. ठीक है, फिर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे बाद में. सॉल्व कैसे करते हैं? हम कोई भी एक्सप्रेशन को तभी सब्सट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं जब उनके वेरिएबल सेम हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर 24xy प्लस 7y बोल दिया आपको कि इसे ऐड करो, तो आप ऐड नहीं कर पाओगे इसको. ठीक है, क्या बस कर पाओगे? आप कॉमन निकाल पाओगे यहाँ पे. ठीक है, समझ आ रहा है ना? प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे हो जाएगा. ठीक है, सो एक्सरसाइज 4.1 में क्या गिवन है देखते हैं. मल्टीप्लाई द गिवन एक्सप्रेशन. ठीक है, ये पूरा आपको खुद से करना है बिकॉज आई ऑलरेडी गेव यू अ एग्जाम्पल. फाइंड द वैल्यू. मैं आपको एक बता देती हूँ क्वेश्चन एंड देन मल्टीप्लाई x प्लस वाई. हाँ, ये इजी है, ये हो जाएगा आपसे. सो फर्स्ट और थर्ड एक्सरसाइज खुद से करनी है, सेकेंड का मैं आपको बता रही हूँ. सो ये क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला. ओके, ये क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें? फाइंड द वैल्यू. या अगर हम सिंपली देखें तो हमें यहाँ पे एक लास्ट में एक्सप्रेशन बनाना है. मतलब हमें ये पूरा मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब पूरा सॉल्व कर देना है आपको. कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेट में नहीं लिखा होना चाहिए. ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 3x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2x. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है?
एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू मल्टीप्लाई x टू 2y, ठीक है, x टू 2y कितना आ जाएगा 2xy। फिर देखो ऐसे करते हैं ना, पहले x को 2y से एंड देन x को 3x से। सो यू हैव टू फॉलो दिस साइन, प्लस x मल्टी 3x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। In second case we have to follow this sign, okay, then y multiplied by 2y square and then y multiplied by plus 3x y, समझ आ रहा है ना। then देखो here you have to follow the same method, 3x multi y कितना आ जाएगा 3xy and then 3x multi 2y कितना आ जाएगा 6x square, then y multiply y square, then y multi 2x y, ठीक है, इतना आ गया या इतना आ गया। उसके बाद देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप कोई भी एक्सप्रेशन को तभी ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो जब उसके वेरिएबल सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल किस किस के सेम है हम पहले देखते हैं। यहाँ पे ये टर्म एक्स वाई कंटेन कर रही है, ये टर्म एक्स वाई कंटेन कर रही है, ये टर्म एक्स वाई कंटेन कर रही है एंड देन ये टर्म भी एक्स वाई कंटेन कर रही है। तो जितने भी एक्स वाई कंटेन कर रही है टर्म्स उसको आप पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस प्लस का ही साइन है सबके पास, दैट्स वाई दे ऑल आर एड अप, ठीक है, हम सबको ऐड कर देंगे। सो 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10 XY आ गया। देन यहाँ पे ये टर्म एक्स स्क्वायर कंटेन कर रही है, ठीक है, ये टर्म भी एक्स स्क्वायर कंटेन कर रही है, और कोई टर्म है क्या, नो। सो 6 + 3 कितना हो जाता है आपका 9 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। एंड देन ये टर्म वाई स्क्वायर कंटेन कर रही है और ये टर्म भी वाई स्क्वायर कंटेन कर रही है, पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, वाई स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है 1y स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। सो 2y स्क्वायर में 1y स्क्वायर को ऐड करोगे 3y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ गया 10xy + 9x स्क्वायर + 3y स्क्वायर, अंडरस्टैंड, ओके, समझ आ गया ना। तो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं, मैंने पूरे एग्जांपल्स दे दिए हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कर लिया है, तो ये पूरा आपका होमवर्क रहेगा, ओके। यू हैव टू सेंड ऑल दिस होमवर्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।